We have studied. In the last class, we have studied what? Electric field due to dipole, whether it is on the axial point or it is on the equipotential axis, or is it at any arbitrary point. Okay. After that, we have seen what is torque. Torque. So torque on an electric dipole placed in a uniform electric field. Uniform का मतलब क्या होता है? What is the meaning of uniform? Uni means one. Form means any form, tendency. So इसका tendency होता है only one directional. So one directional वो directional ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी? पैरेलल. एक ही वन डायरेक्शनल यूनि डायरेक्शनल होगा. ओके. So placed in a uniform electric field. Let us say this is the uniform electric field, and we have placed a dipole here. If it is like this, we have minus q here and plus q here. Plus q will be experiencing QE force in this direction, in the direction of electric field, and minus q will be experiencing electrostatic force in the opposite direction of the electric field. It is QE. So let us say it is tilted at an angle of theta. So if this is theta, if this line is parallel to electric field, this must be theta. Agree? Okay. What is torque? Torque होता है F क्रॉस R. ठीक है? F क्रॉस R. और इसमें R हम क्या लेते हैं? R जो है दोनों के लाइन ऑफ एक्शंस की सीधी डिस्टेंस. What is सीधी डिस्टेंस? Perpendicular distance. तो ये आपकी perpendicular distance है. Let us say it is B. So if it is theta, so let's say what is the force here? QE. Now cross product में जब भी हम magnitude लिखते हैं तो आता है sin theta. Sin theta, but what is this R? This is this D. So let's say it is D. So in this triangle, apply sin theta here. So perpendicular upon hypotenuse B by, this is 2a, dipole length. So B by 2a is equal to sin theta. So D is equal to 2a sin theta. क्रॉस E कर दिया तो D की जगह हो जाएगा 2a sin थीटा और QE. क्रॉस में हम sin थीटा ऐसे ही लिखते हैं तो दो sin थीटा नहीं होंगे. ठीक है, ये सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ लिखते हैं, उस वजह से यहाँ पे sin थीटा आता है. ठीक है, this 2a and Q is nothing but the dipole moment. Then we have, let's say मैं सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड लिखूं तो P E then sin थीटा. ओके, P sin थीटा को वेक्टर फॉर्म में या तो ये P क्रॉस E होगा
या फिर ये E क्रॉस P हो, कौन सा सही है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसकी डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन में है या नहीं। लेट अस से E क्रॉस P, E क्रॉस P राइट हैंड रूल से कैसे आएगा? E क्रॉस P इट इज, ये है आउटवर्ड, ये क्या है? आउटवर्ड। P कुछ ऐसा होगा, E ऐसा होगा। अगर मैं पाम को ऐसे रखूं और ऐसे इसे रोटेट करूं तो द डायरेक्शन ऑफ थंब इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज आउटवर्ड, ठीक है, टुवर्ड्स योरसेल्फ। ओके, बट द टॉर्क का डायरेक्शन क्या है? टॉर्क का डायरेक्शन है इनवर्ड। तो टॉर्क का डायरेक्शन, अगर इसका डायरेक्शन टॉर्क के अपोजिट है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव ऑफ दिस, नेगेटिव ऑफ दिस इज व्हाट? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो ये सही होगा, ये गलत है। तो हम लिखते हैं P क्रॉस E। एनी प्रॉब्लम? Note it down. Let us say this P vector is 2i plus 3j minus 4k, and this P vector is 3i plus, let's say, minus 2j plus 3. So टॉर्क फाइंड आउट करें, मीन्स आपको ये फाइंड आउट करना है P क्रॉसिंग फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बताएं? डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा स्केलर होता है और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर भी आंसर वेक्टर होता है, ठीक है। सो वील गेट दिस, टेल मी quickly, just tell me how will you proceed? So it is the determinant of this I, 9 minus 8, it is 1, minus j, it is 6, plus 12, it is 18, plus j, it is, sorry, plus 8, it is minus 4, minus 9, it is minus 13. Any problem here? Is it visible? Okay, then we get I minus 18j minus 30k. So what will be the tau vector here? I minus 18j minus 13k. Determinants में किसी को कोई प्रॉब्लम डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने में? Any problem in this question? Very good. Okay. Then we'll proceed to a fresh topic. Which is potential. Potential of potential of a dipole. इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया है कि डाइपोल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे क्या लेते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या क्या लेते हैं। लेकिन लेट अस से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पोटेंशियल अगर फाइंड आउट करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेट्स से आई हैव दिस डाइपोल हियर। फर्स्ट हम इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए ही अगर बात करेंगे, लेट्स से दिस इज अ पी पॉइंट। So if it is equatorial, it is x, this length is y, so x
must equal to y होना चाहिए. At the equatorial position, x must equal to y. Agree? Because it is an isosceles triangle, so if this theta is equal to this theta, then these two sides are equal. Okay. So if these two sides are equal, and one potential is due to this negative charge, and another potential is due to this positive charge, and both the potentials are equal. So if I say Vp, ये हो जाएगा V due to minus Q plus V due to plus Q. So V due to minus Q क्या हो जाएगा? KQ divided by X, which is of minus, plus KQ divided by X plus Q के कारण है तो पॉजिटिव साइन आपका, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और V आपके पास आ जाएगा 0. So at the equatorial line, the potential due to a dipole is 0. The potential due to a dipole is 0 at the equatorial line. Any problem here? Any problem? Clear? Okay. Let us say I have chosen an arbitrary point P here. This P is any arbitrary point, and I need to find out the potential at P due to this dipole. And it is distance of this P is R from the dipole, that is making an angle of theta. This theta can be anything. So if it is at the axial point, that theta is 0. If it is at the equatorial position, the theta is 90 degree, or somewhere in between भी ये theta vary कर सकता है. Okay. अब हम क्या करेंगे? अगर मुझे माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल निकालना है, तो मैं डिस्टेंस ये तो ले नहीं सकता. I'll have to take this distance, let's say it is y, and it is x. Now y is not equal to x or x is not equal to y because we have chosen any arbitrary point. So what now? तो यहां हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं. क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन. So why we took the distance from here? Why we took the distance? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डाइपोल से इसका पोटेंशियल. डाइपोल से पोटेंशियल क्या होगा? इस चार्ज और इस चार्ज का कंबाइंड पोटेंशियल. तो अगर मैं सिर्फ इस चार्ज की बात कर रहा हूं तो मुझे इस डिस्टेंस की जगह ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, और अगर मैं इस चार्ज की बात कर रहा हूं तो मुझे ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी. एग्री? राइट? और अगर मैं टोटल डाइपोल से लेंथ निकालूं तो मैं डाइपोल के सेंटर से ऑलवेज मेजर करता हूं. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है? तो यहां मुझे क्या कंस्ट्रक्ट करना होगा? परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे. ठीक? इस लाइन का इस पे जो परपेंडिकुलर, लेट्स से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वो कुछ इस तरह से होगा, और मैं इससे भी अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके से. इज इट? लेट अस से इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं L, से M नाम दे देते हैं, P नाम दे दिया तो इसे Q नाम दे देते हैं, और इससे R नाम दे देते हैं, इसे O नाम दे देते हैं. Any problem? Okay. Now what is potential? Vp is nothing but V
due to minus q plus v due to plus q. Okay, what is v due to minus q? It is minus of kq divided by x. Agree? So it is minus of kq divided by x प्लस q के कारण क्या हो जाएगा kq डिवाइडेड बाय y, क्योंकि ये पॉजिटिव है, प्लस kq divided by y. But I don't know what is x and what is y. We need to find out. Okay? इसे हम थोड़ा और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? kq अगर मैं कॉमन आउट करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 by y minus 1 by x. kq 1 upon y minus 1 upon x, ये लिख सकता हूं मैं. ठीक है, इसे आप कहीं और राइट डाउन करें क्योंकि मैं इसे ड्रॉप कर दे रहा हूं क्योंकि आपको यहाँ नीचे नहीं दिखेगा. So this length is what? This is 2a. So this is 2a. तो सेंटर से L का लेंथ हो जाएगा a और सेंटर से M का लेंथ हो जाएगा अगेन a, because the dipole length is what? 2a. तो हम 2a क्यों लेते हैं आपको यहाँ समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ a लिया होता तो मुझे यहाँ a/2 करना पड़ता, इसलिए हम 2a ले लेते हैं. चलो, there is one assumption. डाइपोल का कोई भी डेरिवेशन करने से पहले हमने एक assumption लिया था, और वो assumption क्या है कि a is very 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 less than what r. ये assumption था क्योंकि ये जो a है ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है तो ये बहुत ही छोटा होगा. अब इसके बहुत ज्यादा छोटे होने से क्या फायदे हैं ये हम आगे देखते हैं. अगर ये छोटा है तो क्या होगा, मैं यहां लिखता हूं x जो है, ठीक है, which is equal to x is equal to pq here. x is equal to pq क्योंकि ये बहुत छोटा है, और y is equal to pr. कोई दिक्कत इसमें? x is equal to pq हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही छोटा है. अगर ये बहुत छोटा है तो मैं कह सकता हूं कि ये इसके बिल्कुल नियर नहीं होगा, बिल्कुल नियर ही नहीं होगा. मैंने तो ये बहुत बड़ा बना रखा है, लेकिन अगर ये बहुत छोटा है तो ये इसके बहुत ही पास लाई करेगा, which means I can say that PL is nothing but PQ if A is very very less than R. और सेम यही तो हो जाएगा. ये बिल्कुल अगर ये बहुत छोटा है तो ये भी छोटा होगा, तो ये बिल्कुल यहाँ पे कहीं लाई करेगा, तो y is equal to PR में कह सकता हूँ. Any problem? Okay. So x और y में what is PQ here? PQ को मैं क्या लिख सकता हूँ? PO which is R plus OQ. PQ is nothing but R plus OQ. R plus OQ is PQ. What is PR? It is R minus OR. R minus OR. Any problem? मैंने ये क्यों लिख दिया? Any problem here? Very good, very good. चलो, अब मुझे पता है कि पोटेंशियल एट P is KQ 1 upon y minus 1 upon x. यही था ना? 1 upon y minus 1 upon x. Now to determine OP and OQ, यहाँ अभी भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं. तो let us say in the triangle LOQ and ORM, let's say MR2. These two triangles, okay, these two triangles are what? Congruent. These two triangles are congruent. और क्यों है वो आप बताएंगे.
फ्रॉम विच रूल इट इज कॉन्ग्रुएंट, ये आप लोग बताएंगे। तो हमने क्या किया, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनका सब कुछ इक्वल होगा, यानी कि एवरी साइड एंड ईच एंगल इज इक्वल टू द अदर ट्राइंगल। So we can write that OR is equal to OQ, but we need to find OR in terms of A and theta. Then I have put cos theta. What is cos theta? Base upon hypotenuse. Base is OR, or if I say cos theta here, then base is OQ upon what is hypotenuse? It is A. So I get OR or OQ is equal to A cos theta. So if I put OQ and OR here as A cos theta, so what will I get? I'll get x is equal to r plus A cos theta and y is equal to r minus A cos theta. x और y के टर्म्स अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको मिल जाएगा k क्यूब 1 बाय A cos theta minus 1 upon A, sorry, it is what? R plus A cos theta. Y is what? R minus A cos theta. R minus A cos theta हो जाएगा। और x is what? R plus A cos theta. Okay. R plus A cos theta minus R minus A cos theta, तो माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ओके, R plus A cos theta माइनस R प्लस A cos theta, तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ R माइनस माइनस प्लस A cos theta divided by A minus B, A plus B. What is A square minus B square? So it is R square minus A square cos square theta. Any problem? R will be cancelled out with this R, so I'll get 2A cos theta. So Vp is equal to KQ 2A cos theta, लेकिन R square minus A square cos square theta में we can assume that A is very less than R. तो अगर ये बहुत ज्यादा छोटा है तो क्या होगा, cos स्क्वायर का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, यानी कि ये a जो है ये पूरा टर्म का मैक्सिमम a स्क्वायर ही होगा। इस पूरे टर्म का मैक्सिमम क्या होगा, a स्क्वायर ही होगा। ठीक, अगर ये a स्क्वायर ही होगा तो फिर a अगर बहुत छोटा है तो अगर कोई चीज बहुत ज्यादा छोटी होती है तो उसका स्क्वायर करने पे और ज्यादा छोटा होगा। तो इस टर्म को मैं सिंपली ये चीज नेगलेक्ट कर सकता हूं क्योंकि a बहुत ज्यादा छोटा है, तो मैं सिर्फ r स्क्वायर लिख दूंगा, r स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है कि q और 2a मिलके क्या बना देंगे, डाइपोल मोमेंट p, तो ये हो जाएगा k p cos theta by r square, which is u। इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? जल्दी से बताएं। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? ओके, नाउ लेट अस से ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। इससे पहले हमने देखा कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट जो होता है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट जो है, सॉरी नॉट इक्विपोटेंशियल, इक्वेटोरियल लाइन जो है उस पे पोटेंशियल जीरो होता है ड्यू टू डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल के कारण पोटेंशियल जीरो होता है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो थीटा है वो हो जाएगा 90 डिग्री, तो cos थीटा इज 0, तो cos 90 0, तो Vp आपके पास में 0 आ जाएगा। इक्वेटोरियल के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट इफ दिस P इज एन एक्सियल पॉइंट? If P is the axial point, theta is 0, cos 0 1. So if P is the axial point, तो अगर कोई कोएक्सियल पॉइंट है तो उसके लिए Vp हो जाएगा KQ by R
स्क्वायर फिर P बाय आर स्क्वायर। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम? राइट इट डाउन। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। So potential energy of dipole placed in uniform electric field. Okay, so time is nearly up. So I think we should leave this discussion for the tomorrow's class. Okay? So कल के क्लास के लिए सर ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है। बड़ा चैप्टर नहीं है, हम बहुत स्लो चल रहे हैं इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। ठीक है, बड़ा चैप्टर बिल्कुल नहीं है। आगे के 2-3 क्लासेस में ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे और भी चीजें पढ़ेंगे। अपनी स्पीड सही है, अगर आप चाहें मैं स्पीड अप कर सकता हूं और ज्यादा। ठीक है, सो आई थिंक वी डिस्कस इट टुमारो। सो अगर कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो आप बताएं, देन विल जस्ट वाइंड इट अप।